तो हमने आपको बताया था ये फिगर से फिगर आउट हो रहा है कि किस तरीके से आपके ये होते हैं, और मैंने आपको वीडियो प्ले करके दिखाया था कि किस तरीके से इसके वर्क होते हैं और कितने किसके डिस्टेंस पे होता है। जरा सा मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ताकि चीजें और आपको एक्सप्लोर हो जाए। ठीक है। We're going to learn about the Atmosphere. The atmosphere is the outer layer that surrounds the Earth. It is formed by gases that protect the planet from outer space dangers like solar flares or small objects flying in space. Oxygen, that is an essential element for life, is found in this layer. The atmosphere also helps to control the temperature of the planet. We would find it hard to survive without the atmosphere. The difference between day and night temperatures would be huge. Depending on how high we get, the composition of the atmosphere changes, dividing itself into 5 main layers: the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere, and the exosphere. The troposphere is the layer closer to the surface of the Earth. It measures approximately 10 kilometers high. Clouds are found in the troposphere, and weather phenomena like wind, rain, or snow occur here as well. Air, that is much needed for life on the planet, is found in the troposphere. That's why we should make sure not to contaminate it. The stratosphere extends to an altitude of 10 to 50 kilometers above sea level. The ozone layer is part of the stratosphere, and it's very important because it protects our planet from harmful UV sunlight rays. The ozone layer is getting thinner and thinner as air pollution rises. Did you know that airplanes fly in the stratosphere to avoid turbulence? The mesosphere extends to an altitude of 50 to 85 kilometers above sea level. The mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Temperatures can drop down to 90 degrees Celsius, below zero. Shooting stars occur in the mesosphere. These are meteors that travel through space. As soon as they hit the mesosphere, they start burning up, leaving a tail behind them. The thermosphere extends to an altitude of 85 to 500 kilometers above sea level. This layer is the warmest of all 5 layers. Air temperature on the surface of the Earth is kept constant thanks to the thermosphere. In this layer, temperatures can rise to more than 2,000 degrees Celsius. The International Space Station orbits the Earth within the thermosphere. Impressive natural phenomena, like the northern and southern lights, occur in the thermosphere. The exosphere is the most distant layer from the Earth's surface. It extends to an altitude of approximately 500 to 10,000 kilometers above sea level. Air in the exosphere is very thin. There's nothing but hydrogen and helium there. This layer is our outermost limit with space and protects us from solar flares. Satellites orbit the Earth within the exosphere. These are the 5 layers of the atmosphere. Very interesting, right? तो इस तरह से आप लोगों ने देखा वीडियो और ये चीजें समझ में आए, क्योंकि मैंने एक बार फिर से रिवाइज करवाया हूँ कि आप देखो, यही आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने कितने डिस्टेंस पर वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जो लेयर होते हैं या हमारे फेस होते हैं, याद रखिएगा हर एक फेस में या हर एक लेवल या लेयर में, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में 10 लेवल होते हैं। उसकी काउंटिंग 0 से 9 होती है, 1 से नहीं होती है। क्लियर है? और हमेशा आप सॉलिड बॉडी या कॉमिक की बात करोगे या मेटेओराइट्स की बात करोगे तो वो फर्स्ट लेवल ऊपर से चालू होगा, और जब गैसेस स्टेट की बात करोगे तो नीचे से चालू होगा। राइट? अब ये बात यहाँ पे ये फंसती है कि किस तरीके से आप बॉन्डिंग और ये सारी चीजें आप जो है बनाते हैं, और किस तरीके से आप जो है गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आगे जा करके वो रिड्यूस का काम करें। ऐसा ना हो कि वो प्रोड्यूस जो आप कर रहे हैं और आगे जा करके उसका कुछ हजार्डेरियस फॉर्म या कोई इवेंट्स हमें देखना पड़े जो कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर अफेक्ट हो। ठीक?
तो आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया था, रेडिएशन का जो आइनोस्फीयर होता है वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ओजोन में आपने एक लेयर देखा था कि जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में होता है, तो उसी प्रकार से आपका ये आइनोस्फीयर होता है कि जो कि थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच के लेवल में रखा जाता है, जिसकी वहां से मेसोस्फीयर के 48 यानी 48 किलोमीटर होती है। ठीक है, और एक हम लोग सी लेवल पे भी एक आइनोस का सेकेंडरी पार्ट रखते हैं। दोनों को 48 डिस्टेंस पे ही रखा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर होता क्या है कि जो, ठीक है, मतलब एक्सटेंड करता हो, मतलब पृथ्वी की सरफेस से, ठीक है, 8 to 14.5 किलोमीटर के बीच में होता है, यानी 5 to 9 माइल्स के बीच में होता है। दिस पार्ट एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डेंस होता है, मतलब मोस्ट डेंस है, और इन्हीं के बीच में हमारा वेदर रीजन ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, तो ऐसे फेस को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ कि व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर लेयर, ठीक है ना। ट्रोपोस्फेयर लेयर है क्या चीज आखिर में? तो देखो ये यहाँ पे राउंड फिगर आप लोगे कि पृथ्वी की सरफेस से 10 किलोमीटर यानी सी लेवल से 10 किलोमीटर, समुद्र तल से 10 किलोमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर जाते हो, तो उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जहां पे वेदर जो है बनते हैं। इसके 3 फैक्ट हैं। व्हाट आर द 3 फैक्ट्स अबाउट द ट्रोपोस्फियर? ठीक है, तो देखो लोवेस्ट लेयर है ये सबसे अपना, ठीक है। इसके अंदर देखो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और जो है एटलीस्ट 1% हमारा आर्गन, वाटर वेपर, और यहाँ पे आता मैंने एक चीज नॉकआउट किया था कि 5% वेपराइजेशन का फॉर्म बताया था। देखो ये 5% वेपराइजेशन कहां से आ रहा है, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 क्यों लिख रहा है? देखो जब तुम सी लेवल की बात करोगे, एक ग्राउंड लेवल हो गया, जैसे 1/3 में तुम्हारा सी लेवल है, 4th लेवल की बात करूं तो ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि जो सी लेवल डेवलप जो कर रहा है अपना, ठीक है, उसके हिसाब से जो वेपराइजेशन का फॉर्मेशन है, जिस तरीके से पर यूनिट है, वो 5% होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करूं मैं, तो उसके हिसाब से आपका टोटल 1% बनता है, राइट। इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन का है, सभी में अलग अलग, स्ट्रेटोस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर मेसोस्फेयर में भी आपका आता है कुछ परसेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक जलाने का भी काम करता है, ऑक्सीजन बस एक कैटलिस्ट का वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंक्लूडेड हम लोग किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, देखो मीथेन जलने के काम में आता है। ठीक है, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, ये सब जितने भी एलिमेंट मैं बता रहा हूँ, ये जलाने के सहायक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके। क्लियर है? व्हाट हैपन इन द ट्रोपोस्फेयर, उसके अंदर होता क्या है? देखो सभी का एक साइक्लिक है। मैं ग्राफ दूंगा तुमको इसका आगे, उस ग्राफ से तुमको काफी मदद मिलेगा, उस ग्राफ को पेपर में जरूर लिखना। द साइकिल विच अकर इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये हमेशा अपने आप को रिपीट करता रहता है। इवोपरेट करिएगा लार्ज अमाउंट में, वो भी वाटर लेवल से या वाटर से, ठीक है, मॉइस्चर वो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, वेपराइजेशन का होगा, ठीक है, कई सारी चीजें होंगी, और जा करके एटलीस्ट वो बादल बनाता है। यही बादल दो के रूप में होता है। मैंने देखना, बादलों की अगर बात करूंगा तो दो तरीके के होगा, एक हैवी होगा, एक लाइट होगा। लाइट तुम्हारा ऊपर रहेगा, हैवी तुम्हारा नीचे होगा, यानी बरसात कराने वाली जो चीजें होती हैं वो नीचे होंगी, बादल के केस में बता रहा हूं, और बाकी जो उससे हल्की होंगी, जैसे धूप जो ट्रांस होंगी, एक दूसरे से दूसरे जगह पे ट्रांस करेंगी, वो हल्की होती हैं। लेकिन जब बात तुम्हारा बादलों के टकराने का होता है, या बादल जो होता है ऊपर ज्यादा ठंडी हो जाती है, तो वो मीसोफेयर में रहता है, यानी इसके ऊपर भी रहता है। जैसे तूफान उफान का जब सामना होता है, तो ये ऊपर जाकर के, यही क्लाउड जो हल्की क्लाउड होती है, ये ऊपर जाकर के और ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और सॉलिड का एक तरह से रूप लेती हैं। ये हिली उली एरिया में आपका होता है, क्योंकि पृथ्वी ना आपका दीर्घवृत्ताकार है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऊपर से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, तो ये भी सारे हैं जो आगे मैं आपको बार चार्ट और ग्राफ से दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्ट्रेटोस्फेयर की बात करता हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर की, जैसा कि तुमने वीडियो में देख रखा था कि वो कहां से कहां के बीच में लाई करता है, यानी 50
सी लेवल से 50 किलोमीटर, राइट। अब देखो वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, ठीक है ना। अब देखो इसी में तुमको ओजोन मिलेगा। जब भी स्ट्रेटोस्फेयर की बात आए, बिना ओजोन को लिखे तुम आना मत, क्लियर है। ओजोन जरूर लिखना और उसको हाईलाइट भी कर देना। अब ये काम स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का भी जिक्र करते हुए ये भी बताना पड़ेगा तुमको कि किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि मैंने पहले पीपीटी के पेज में दिखाया था कि यूवी रे ए और यूवी रे बी किस तरीके से पास करता हो और आता है, क्लियर है। अब देखो इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं, जाहिर सी बात है अल्ट्रावायलेट रे को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, प्लस नीचे जो हमारे जो हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं अपने कंफर्ट जोन को बनाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए, जैसे सीएफसी जैसे चीजों को हम यूज ले लेते हैं, जो एरोसोल होता है अर्थ का, ठीक है, वो एक तुम्हारा इंसुलेटेड या इंसुलेटर का काम कर देता है, जो कि हीट ट्रीटमेंट को ट्रांसफर नहीं करता है, एक बाउंड्री लाइन कर देता है, होता है पर स्लो होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था एल्युमिनियम फॉयल का है, क्लियर है। अब देखो क्या ये या क्यों ये स्ट्रेटोस्फेयर गर्म होता है, तो देखो जो वाई इज द स्ट्रेटोस्फेयर हॉट, तो देखो टेम्परेचर इज राइज इंक्रीज एल्टीट्यूड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओके। ओजोन मॉलिक्यूल इन द स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, राइट। सूरज से आने वाली जो रे होती है, जो रेडिएशन होती है अल्ट्रावायलेट, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो रिफ्लेक्ट कर लेता है। कुछ चीजें होती हैं ए जो छन जाती हैं और छन करके आ जाती हैं, क्लियर है, और बाकी चीजों को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो बचा रहता है। द एनर्जी फ्रॉम यूवी रेडिएशन ट्रांसफॉर्म इनटू हीट, अब वही जो हीट होती है वही ट्रांसफॉर्म हो जाती है गर्मी में, ठीक है। द हीटिंग इज द मोस्ट इंटेंस नियर द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, मैंने बताया था ना LV1 यानी लेवल 1 में आपको हीट ये देखने को मिलेगा, कहां पे, ओजोन लेयर के पास, जो LV1 उसका होगा, ठीक है। यही होता है, और वो की वार्मेस्ट होता है, मैंने बताया था ना कि नीचे कूल होता है, फिर वार्म होता है, उसके बाद कूलर होता है, ठीक। कभी कभी ये ग्राफ चेंज हो जाती है हमारी गलतियों की वजह से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को पर डे बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे, व्हीकल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारा वार्म जो होती है, जो उसकी गैस होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी गर्म होता है और वो ऊपर तक नहीं जा पाता, मतलब पास नहीं कर पाता, इसीलिए वो साइक्लिक पीरियड करता रहता है, इसीलिए पृथ्वी अपने आप गर्म हो रही है, क्लियर है। तो ये सारी वजहें हैं। आगे बढ़ते हैं, मीसोफेयर के बारे में बात करते हैं। देखो मीसोफेयर इज लाइज बिटवीन द थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, आ गया ना यहाँ पे बात। जो मीसोफेयर है वो किसके बीच में रहता है, ठीक है, थर्मोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नहीं तो तुम्हें पता है कि सी लेवल से कितने दूरी पर है, ठीक है, तुम वो भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। वहां पे क्या होते हैं, कई सारे जो गैस होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, यहीं पे सब बनते हैं मीसोफेयर में, क्लियर है ना। बॉन्डिंग वहीं पे बनाते हैं, कोई किसी से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई किसी से पाई बॉन्ड बनाएगा, कोई न्यूट्रलाइज के फॉर्म में रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वर्क होता है, क्लियर। अब देखो व्हाट हैपन द मीसोफेयर लेयर होता है, उसके अंदर क्या होता है आखिरकार ऐसा, और मीसोफेयर क्यों हमने नाम रख दिया ऐसे बाकी चीजों का जैसे नाम रखा। तो देखो मीसोफेयर का जो है वो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर का पार्ट है, जो कि ये -90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता है, ट्रीट करता है उसको, ठीक है, और एक बाउंड्री का काम करता है, क्लियर है। और इसके 3 फैक्ट्स ऑफ मेसोफेयर क्या हैं, तो द 3 फैक्ट्स यही होते हैं कि वो कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर होता है, जो कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग एरिया में रहता है, चारों ओर वो बना रहता है, क्लियर है। इट बिकम्स कोल्ड एनफ टू फ्रीज ऑफ वाटर वेपर, क्लियर है। और देखो वहां पे आइस भी, आपका आइस क्लाउड भी डेवलप करता है, ठीक है। अब ब्लू व्हाइट भी हो सकता है, ब्लू व्हाइट भी इसको कहते हैं। कभी कभी आसमान में देखोगे कि तुम्हें आसमान तुम्हें क्यों नीला दिखता है, लोग कहते हैं कि हाँ चलो भाई समुद्र है इसलिए उसका प्रकाश पड़ा, प्रकाश परिवर्तन के जगह पे, इसलिए। तो देखो ब्लू व्हाइट का मोस्टली कारण यही होता है हमारा, ठीक है, कि मीसोफेयर, क्लियर है, चाहे वो दिन हो या रात हो,
ठीक है, वो बस नेवी और लाइट ब्लू में इंटरचेंज होता रहता है, वो भी आपके सन रे की वजह से। कैन प्लेन फ्लाई इन म्यूसोफेयर, क्या है हवाई जहाज उड़ सकता है? तो याद रखिएगा मैंने स्ट्रेटोस्फेयर में अच्छा चीजें बताई थी कि उड़ सकता है, लेकिन कभी कभी, ठीक है, जैसे जेट प्लेन या अधिक दूरी करना है, क्योंकि हमें आइनोस्फेयर को भी ध्यान में रखना है, और आइनोस्फेयर में ही जब हमारे प्लेन्स या बाकी चीजें होती हैं तो ही हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और समझनी है और इसी के बारे में लिखना है। जैसे क्या होगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसके एडवांटेज क्या है, अकॉर्डिंग टू द एयर पॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द अर्थ, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन पर्पस। ओके, that is the difference between use and utility, how can you will be represent, ठीक है। अब आगे बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर क्या है? देखो, थर्मोस्फेयर एक लेयर है जो कि आपका लोकेट करता है मीसोफेयर के, ठीक है, और बिलो द क्या होता है आपका एग्जोस्फेयर। क्लियर है, एग्जोस्फेयर के नीचे होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। इसमें क्या होता है आपका, देखो कह रहा कि व्हाट इज द लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर। तो देखो क्या है थर्मोस्फेयर, तो वही चीजें हैं, यहाँ पे फोटोनाइजेशन होता है, ठीक है, फोटोनाइजेशन होता है। इसमें देखो जैसे आप कोई भी चीजों का कैप्चर कर सकते हो, और यहाँ पे जो तुमने फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चीजें होती हैं वो चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे आयंस बनते हैं, ठीक है, आयंस बनते हैं, और आइनोस्फेयर देखो इसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, बनते का मतलब क्या है, यहीं पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब चीजें जो बनती हैं, बाकी की अदर चीजें रिड्यूस कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने साफ साफ लिखा है। So you can say the outer layer of the thermosphere has no special function. Rather, in inner layer of thermosphere which is ionosphere, मतलब समझ में आ रहा है, इसके बाहर का कोई थर्मोस्फेयर का काम नहीं करेगा। थर्मोस्फेयर के अंदर जब आएंगे तो उसको एक टर्म्स दे दिया गया है जिसको आइनोस्फेयर के नाम से हम जानते हैं, जो कि एक स्पेशल फंक्शन रखता है और एक अलग से एक रेंज प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, एक्टिव कम्युनिकेशन होती है और पैसिव कम्युनिकेशन होती है। जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो समुद्र के अंदर ना बहुत मोटे मोटे वायर बिछाए गए, बहुत मोटे मोटे, और उसमें पता है क्या है, वो टेरा होता है, टेरा 1, टेरा 2, टेरा 3 के नाम से जाना जाता है। ये भी रेडिएशन देता रहता है, ऑल द टाइम इमिट करता रहता है, भूकंप नापने में काम आता है, ठीक है, कोई तूफान उफान आ रहा है तो उसके बारे में बताता है। ये कई सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट हैं इसके, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी चीजें मैं बताऊंगा, कभी होइएगा सामने तो मैं आपको पूरा अच्छे से 1-2 दिन में अच्छे से समझा दूंगा कहानी की तरह, ठीक है। अब देखो क्या है कि व्हाई इज द थर्मोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर, क्यों ये जो थर्मोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर होता है, तो देखो इसका कारण देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में टकराना, कोई भी अगर हाथ को रगड़ोगे तो भाई हीट तो होगा, वहां पे फ्रिक्शन का काम होता है, क्योंकि अर्थ का अलग ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो किसी चीज को खींचेगा तो उसके अंदर एक्शन और रिएक्शन दोनों होगा, राइट, जिसके वजह से हीट होता है, तो वो वहां पे ऑलरेडी जो होते हैं मोशन में ही होते हैं वो। क्लियर हो गया, जैसे मैं बता रहा था तुमको अभी इसमें कि मोशन में ही रहते हैं, जिसके वजह से ऑल द टाइम पास तो होता नहीं है, वो उसी चैम्बर में फंस जाते हैं, जिसके वजह से हीट हमारा अधिक रहता है। ठीक, आगे देखो आइनोस्फेयर के कुछ बारे में मैं तुम्हें बता दूं। आइनोस्फेयर देखो एक डिफाइन करता है वो भी एटमॉस्फेयर के अर्थ के लेवल को, ठीक है, यहाँ पे उसकी रेडियस देखो 6370 किलोमीटर है, उसकी थिकनेस भी इस पे लिखा हुआ है। अब देखो आइनोस्फेयर में जो हमने यूज किया हुआ है, देखो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, देखो वहां पे आयोनाइज होते हैं, ठीक है, अपर होता है 60 किलोमीटर होता है, 37 माइल्स होता है, और उसके बाद 1000 के बीच में वो एटीट्यूड पे रहता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब ये पृथ्वी के एक्सिस के जो रोटेशन होता है 23.5 डिग्री, 21.5 और 23.5, ठीक है, उसको कोलैब करता है। ये विंटर और इसमें
समर में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसी के बीच में रहेंगे ये, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, 21.5 23.5, लाई तो कॉमन मान लेते हैं 22.5 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से तिरछा जो होता है फ्लक्चुएट करता रहता है, और किसी पे पूरा पड़ता है अर्थ सरफेस का टाइम प्लस उसका, देखो ये सन है तो ये इसकी जो साइकिल पाथ होती है, एक बार मार्च वर्च में देखोगे क्या नजदीक होती जाती है और दिसंबर तक ऐसे दूर होती जाएगी। तो इसका भी इंपीरियल इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फेसों पर, यानी हमारे लेयर्स के ऊपर, या यूं कह लें, ठीक है, कंजप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर, ठीक है, किस तरीके से खपत होती है उसकी, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोल्ड है या हॉट है, ये भी समझ में नहीं आता है कई लोगों को, क्योंकि इतने सारे उसके फेसेस होते हैं। देखो सीधे सी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने तुमको एक चीज बोला था कि कोई भी फेस होता है पहले उसके बिटवीन होता है, बिटवीन के बाद तुम्हारा क्या रहेगा उस पर कि लेवल होगा, लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट होता है कि इस लेवल की बात हो रही है तो इस लेवल में ये हो रहा है, इस लेवल में ये होता है, ये ब्रॉड लेवल पे है। फिलहाल हमारा पॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स के ऊपर मैं ग्राफ तुमको दूंगा आगे। एक्सोस्फेयर के बारे में देखो क्या है, एक्सोस्फेयर एकदम आउटर लेयर है, ठीक है। ये काफी बड़ा होता है, एक्सोस्फेयर में खाली गैस होता है, उस गैस में देखो हाइड्रोजन और हीलियम, समझ में आ रहा ना, रहते हैं कि हर वक्त स्प्रेड ही होते रहते हैं, ठीक है, और जिसके वजह से गर्मी काफी रहती है। यही सारी चीजें हैं। वाई इज द एग्जोस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है, कि क्योंकि मोस्ट डिस्टेंस है, वो ना रहे तो भाई म्यूटोराइड एस्टोराइड एंड कॉमिक्स, देखो देखो ये लिखा हुआ है ना, म्यूटोराइड्स, ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं आपके ऊपर कॉस्मिक रे, ये सारी चीजें गिरती रहती हैं, उल्का पिंड हो गया, छोटे छोटे ये सब हो गए, तो ये सारी चीजें होती हैं। फैक्ट क्या है इनके, फैक्ट ऑफ लॉजिकल बातें अगर मैं करूं तो देखो फैक्ट क्या है कि एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, हीलियम के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में होते रहते हैं। जैसे सन के पास क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन है, वहां पे नाभिकियों का संलयन और विखंडन दोनों प्रारूप मात्रा में चलती रहती है, क्लियर है। इसी तरीके से हमारे अर्थ सरफेस के एग्जोस्फेयर में काम करता है, टूटना मिलना टूटना मिलना टूटना मिलना यही रहता है, ठीक है। यही सारी चीज जिसके वजह से हीट होता है। और देखो ये क्या है, अगर इसके फंक्शन की बात करूं लास्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जोस्फेयर, तो एग्जोस्फेयर का देखो जो फंक्शन है वो ट्रांसलेशन जो होती है, जो उनका ट्रांसलेशन वो इन्फ्लुएंस ग्रेविटी के ऊपर सीधे सीधे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये बाकी की चीजों से मिली नहीं रहती है, और ये डेफिनेटली जो मैं बता रहा था ना तुमको, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, डेफिनिट शेप्स, ठीक है, ये होते हैं, और ये झुकाव के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लियर है। अब देखो क्या है कि द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोफाइल, याद रखना। इसी वजह से बहुत बच्चों को दिक्कत होती है जो नए नए इन चीजों को समझते हैं। यही बात यहाँ पे मैंने साफ साफ कह दिया है कि द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइड इनटू लेयर बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोफाइल। हर एक लेवल में, हर एक लेवल पर आपको एक टेम्परेचर प्रोफाइल मिलेगा, और उसका एक लेवल होगा, एक फेस होगा, जो कि डिपेंड करता है और वैरी भी करता है आयोनाइजेशन के क्रिएटिंग फॉर्म में या डिसअपियर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है, ये खुद का, ये नेचर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारा नहीं, नेचर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। डेवलप करना, रिड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, बॉन्ड बनाना, सिग्मा बॉन्ड बनाना, पाई बॉन्ड बनाना, न्यूट्रलाइज के फॉर्म में रखना। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो हम फालतू की चीजें रोक रहे, मतलब बना रहे हैं, उसको रोक दें, उसको कम कर दें, जो कि ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में अटका रहे, और जिससे अर्थ की जो हीटिंग है वो कम हो जाए, बस यही पूरा मेन टॉपिक है। बाकी फेस पे तो एंटर जाओगे तो भाई बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने ये बताया था तुमको, ये सारी चीजें तुम देख रहे हो। और देखो एग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और मीसोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह के लेवल बने पड़े हैं, और वीडियो मोड एक और आने वाला है, और उसको भी आप लोग देख लो, ठीक है। टेम्परेचर किस तरीके से क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर देखो ये सभी है, अदर थर्मोस्फेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो इस तरह से ये आपका जो है काम करेगा एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है।
और देखो ये जो है आपका अनइक्वली हीटिंग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अनइक्वल हीटिंग। ठीक है, कहाँ गया? एक सेकेंड। देखो जो क्लाइमेट का है यहाँ पे इस तरीके से पड़ता रहता, बाकी का सी लेवल। समझ में आ रहा? अनइक्वल हीटिंग, क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ठीक है, ये जो है वीडियो जो है प्ले नहीं हो रहा है, कुछ कारण है, देखते हैं क्या इसकी दिक्कत है। ठीक है, तब यहीं पे बंद करते हैं, आगे देखते हैं, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा काम।